Today we here at Western Regional Laboratory. Many of us also know this place by Bureaus of Indian Standards. Basically, it's a testing department, and they have their own way of testing products. Let's see what are the techniques and mechanism they use to rectify the product. And once you reach to the main gate, you can see there are two officers, and they are asking one of our team member what is our purpose of being over here. Further, we have informed officer about that we already had an invitation from their department itself. After all clarifying, we entered in lounge area, and we can see there is one more officer standing next to the reception desk, and if by default someone have to wait over here, there is a huge amount of space, so you can sit back, relax, and let's move towards the reception desk. Let's see what officer says. And it seems like it's a personal register to note down the details of visitors. First floor पे right hand side conference room. Yes. Yes. Thank you. And as you already heard, that officer said that we need to go to the first floor to the conference room. Let's head towards to the conference room, and even I'm a little bit excited to see the advanced lab and the highly qualified staff. And we're gonna see what are the tricks they use to rectify the product and how it will be helpful for industries to enhance their product quality. So we are nearby to the conference room. Before heading to the rooms, you can see Dr. Neil Kakri is head of the Western Regional Laboratory, and we are about to enter into the conference room, and it seems like meeting is already begun. Rather, we would prefer that all the customers, manufacturers, stakeholders are informed prior hand that this technical regulation of QCO, इस किस्म का गुणवत्ता अधिनियम आने वाला है, इस तारीख से इम्प्लीमेंट हो रहा है. Thanks to all of you. The moment we have entered and meeting is already over, but they have their other department that need to be covered as well. So everyone is moving to the other department. Even we are moving towards the same department. यहाँ पे हम लोग स्विचेस, सॉकेट्स, केबल्स, वायर्स, ये सब और होम अप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं. इस समय हम एक इक्विपमेंट देख रहे हैं, इसे प्रोफाइल प्रोजेक्टर कहते हैं, जो हमारी इंसुलेशन शीट होती है किसी भी वायर के ऊपर, जो घरों में तार यूज़ करते हैं बिजली के. तो ये उस इंसुलेशन शीट का जो बाहर शीट है उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो ये इक्विपमेंट मेजर करता है. अब आप देखिएगा एक क्लिक में ये अराउंड 10,000 रीडिंग्स देता है, 10,000 रीडिंग्स, और उसको कैलकुलेट करके उसमें से जो डेटा देख करके ये एवरेज बताता है कि इसकी शीट की थिकनेस कितनी आ रही है. तो ये इतना प्रिसिशन वाला इंस्ट्रूमेंट्स हम अपनी लैब में यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे घर सेफ रह सकें. तो ये प्रोफाइल प्रोजेक्टर, इसी तरह हमारी टेंसाइल टेस्टिंग मशीन्स भी हैं. ये भी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी उसकी उसमें कितनी शक्ति है, उस जो शीट है इलेक्ट्रिकल की, उसके लिए ये इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. और इंडियन स्टैंडर्ड्स में जो टेस्ट मेथड्स दिए गए होते हैं उसके हिसाब से टेस्टिंग होती है, और उसमें जो पास होता है सैम्पल, तो वो हमारा जो सर्टिफिकेशन वाले ऑफिसर्स हैं वो फिर उनका सुचारू रूप से चलते रहते हैं. थैंक यू. We are done with the two machine, and we are going to the different department to see what the other machine can do. माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग सेक्शन है. राइट साइड में माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग लैब है, और लेफ्ट साइड में हमारा मोल्ड टेस्टिंग की सभी को नमस्कार. ये हमारा रेफरल असेर वेस्टर्न रीजनल ऑफिस का आर्यल है. जैसे ये हमारे पास 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है. केमिकल हो गया, माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और ये रेफरल असेर है. एक्सक्लूसिवली ये रेफरल असेर लैब में हम गोल्ड का टेस्टिंग करते हैं. गोल्ड में 5 डिफरेंट टाइप्स का कैरेट का गोल्ड का टेस्ट करते हैं. 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20, 22 और 24 कैरेट. अभी 9 कैरेट का भी एक प्रोविजन आ गया है. ये उसको जल्दी से जल्दी हम 9 कैरेट का टेस्टिंग भी शुरू. तो जैसे पहले गोल्ड आता है, तो गोल्ड आने के बाद हम 1 ग्राम गोल्ड आता है हमारे पास. इसमें 215 mg टेस्टिंग को लेता है. तो पहले हम सरफेस, कोई आप लोगों के पास कोई गोल्ड का सैंपल अगर आप है तो रिंग वगैरह कुछ है तो है आपके पास, लाइए उसको टेस्ट. हाँ, ये इसको भी कर लेंगे. तो ये हमने इसमें लगा दिया है. एक मिनट देख लीजिए. एक्सरे डायफ्रैक्शन मशीन है. सो यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है अंदर, अगर आप देखेंगे. सो बाय यूजिंग एक्सरेज ये बताएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें
प्रेजेंट। ये गिफ्ट में आपको सही मिली है या थोड़ा कम हो गया है, ये मशीन बताएगी। ये मिशन में आपका रिजल्ट है ना तुरंत आ जाएगा। ये सरफेस लेवल पे सरफेस लेवल पे होता है, प्योरिटी टेस्ट होता है, तो ये तुरंत आ जाएगा। तो ये एक तरह की प्राइमरी टेस्टिंग है आप कह सकते हैं, क्योंकि और ज्यादा के लिए तो उसको पिघलाने वाली टेस्टिंग आगे है, बट इस सरफेस पे आपको बताएगा कि कितना है। ओके, इट्स 926। 926 एक्स्ट्रा है, 916 से ऊपर है। इसमें आप और भी मेटल्स है, स्टैंडर्ड के हिसाब से सिल्वर इतना है, additive कॉपर है, tolerance allowed जिंक, नहीं है। ये भी इसका ये उससे ज्यादा है, 916 की जगह 926 है। और अच्छा है। हाँ, chain चेन भी एक बार देखें। स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है। नॉन होल मार्क्स। Wait. क्वालिटी कम हो गया इसमें, तो आप अगर आपके पास सही बिल है तो आप मतलब कंप्लेंट कर सकते हैं। और चेक करने के लिए यहाँ पे भी ला सकते हैं। कंज्यूमर करके लेके आए नहीं, कंज्यूमर टेस्टिंग नहीं करते हम, थ्रू अगर हमारे ऑफिस के द्वारा आते तो अच्छा, वहाँ पे कंप्लेन के थ्रू आप अगर जाते हैं तो माल थ्रू पोए में हमारे सर्टिफिकेशन ऑफिस, अगर वहाँ से अगर रूटेड आ गया हमारा सैंपल तो हम टेस्ट करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर टेस्टिंग नहीं करते। कंज्यूमर टेस्टिंग करेंगे तो फिर काफी कुछ आ जाएगा। थोड़ा चार्जेबल रख के स्टार्ट किया जा सकता है कस्टमर से। डिवीजन अभी तक नहीं है। ऑलमोस्ट सेम, सेम ही है, अबाउट 20 है बट बिलो 22। नहीं 860 है तो कम नहीं। लास्ट वाला भी 889 है। नहीं उस पे हॉलमार्क नहीं था, हॉलमार्क नहीं था। इसलिए हम कह नहीं सकते, बट उनका था 916 लिखा था और 926 आया। चेन ले लो भाई। ये आगे चेन ये फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग हो रही है, एक से प्रीलिमिनरी टेस्टिंग। इसके बाद है ना हम सैंपल कट करके डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। उसमें सैंपल कट करके इसको हीट करके एनिलिंग पॉपुलेशन द्वारा हम लास्ट पार्टी करके इसमें कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड है, कितना प्रतिशत गोल्ड है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम हमारे पास ट्रिपुलेशन करने से एनिलिंग हो गया, फर्नेस हो गया, तो इसमें एक 4 घंटे या 5 घंटे का टेस्टिंग होता है। ये तुरंत आता है ना, वो ऐसे नहीं है, 5 घंटे का टेस्टिंग। अच्छा, जो कभी भी कोई गोल्ड लोन लेता है तो कोई पत्थर निकालते हैं, उसको लेते हैं लिक्विड गिरा के चेक करते हैं, वो क्या होता है? कुछ उसके ऊपर अगर करते हो फिर लिक्विड गिरा के लिक्विड डालते हैं। एक्चुअल टेस्टिंग है ना, ये एक्चुअल लिक्विड फिर क्या क्या चीजें होती है? किसके ऊपर बोल रहे हैं? कोई स्पून होता है ब्लैक कलर का, कैसे उसके ऊपर और घिसते हैं और लिक्विड डालते हैं। ज्वेलर्स लोग वो एक्चुअली क्या है ना, वो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हम इतना क्वांटिटी गोल्ड है आपका सैंपल में, इतना क्वांटिटी सिल्वर भी है, तो वो सब है ना, सिल्वर बाकी सारा एलिमेंट लॉस होके कितना गोल्ड बचा वो हम इधर कैलकुलेट। ये बिस्किट में भी अगर गोल्ड के बिस्किट के अंदर कुछ और हो, बाहर से कवर गोल्ड का हो, तो यहाँ टेस्टिंग हो जाएगा, वो क्लियर सारी चीज। बट नॉर्मल है ना, 24 कैरेट तो गोल्ड है बिस्किट है, वो 24 कैरेट ही होता है 100%। अच्छा, कौन सी कंट्री का अभी जैसे हुआ तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री के गोल्ड होते हैं, तो मैक्सिमम कौन सी कंट्री का शुद्ध गोल्ड पाया जाता है, ऐसा कुछ? वो स्पेसिफिक वो इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि आप लोग इस गोल्ड की आप लोग टेस्ट नहीं, बट सैंपल टेस्ट करते हैं, बट हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन कंट्री का इन्फॉर्मेशन। ये हमारा गोल्ड टेस्ट, जो भी सैंपल आता है ना वो सब कोडेड फॉर्म में, तो हमने एग्जैक्टली हमारे लिए सिंपल ये गोल्ड है, हमें नहीं पता ये कहाँ से है। अच्छा हाँ, लेबोरेटरी के लिए जैसे मोहित और रमना जी ने आपको बताया, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब हमारे पास लैब में सैंपल आता है बाहर से, जो हमारे ब्रांच ऑफिसेस ड्रॉ करते हैं मार्केट से या फैक्ट्री में जा करके, तो वहां पर वो सैंपल पे एक कोड लगा देते हैं, और जब हमारे लैब में आता है तो इससे पहले कि वो टेस्टिंग सेक्शंस में आए, जैसे केमिकल टेस्टिंग अलग है, गोल्ड की अलग है, टॉयज की अलग है, तो हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है स्टार्टिंग में ही, जिसे हम सैंपल सेल कहते हैं, तो वहाँ पे उस कोड को चेंज कर दिया जाता है और अंदर का एक कोड अलग हो जाता है, बाहर का कोड अलग हो जाता है। तो जो लैब में टेस्ट कर रहा है उसको ये पता नहीं चल पाता है कि
किस मैन्युफैक्चरर का है, किस लाइसेंसी का है, तो वो फेयर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होती है। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स है, गोल्ड की बात नहीं करूंगा, बाकी प्रोडक्ट्स में जहां तक पॉसिबल हो उसको हम डीफेस जो ब्रांड है, जैसे पानी की बॉटल आई मान लीजिए, तो उसका हमने वो लेबल निकाल दिए सारे के सारे। जितना पॉसिबल उसकी डीफेसिंग या डीमास्किंग, हम मास्किंग कर सके उसको, वो हम करते हैं। और लैब के अंदर आने का जो टेस्ट करने वाला है उसे ये पता नहीं होता है किसका सैंपल है, तो दैट इंश्योर्स। नहीं, ये जरूरी है ना, ये जरूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए, वरना ऐसा हो सकता है कि फेवर हो सकता है। हाँ, अगर वो लिंक ब्रेक कर देते हैं। टेस्टिंग पर्सन को बिल्कुल नहीं पता चलता। हमारे यहाँ इस जगह पे तो कोड्स अलग तरह के होते हैं, बाहर सैंपल्स पे हमारे अलग कोड्स होते हैं, और जो ड्रॉ किया जाता है सैंपल उस पे इलैबोरेट कोड अलग होता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। अभी आप चाहे तो एक सैंपल दिखा दीजिए कैसे आता है मैम। हाँ हाँ, सैंपल ऐसा आता है। ये वो क्या ना रिंग वाले ये हमको पता नहीं चलेगा कहाँ से आएगा। ये जस्ट इसमें ना कोड होता है, इसमें रिसिप्ट नंबर होगा, सैंपल डिस्क्रिप्शन, ये रिंग है या चेन है या बूटी है। बाद में इसका ग्रेड 916 है, कितने कैरेट, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, 20 कैरेट है, 23 कैरेट है बस। और इसका वजन होगा 1.27 और एक्चुअल वेट कितना है, बस ऐसे सैंपल आता है बस तक पीस। हाँ, ये रेगुलेटरी टेस्ट हो चुका है, टॉयज टेस्टिंग भी होती है हमारे यहाँ। टॉयज अभी कुछ टेस्टिंग पे है, जैसे कोई रैम्प आप देख पा रहे होंगे, वो रैम्प है जिसमें टॉय को रन किया जाता है और वो वायर्स के थ्रू उसमें अलग अलग जगह पे पॉइंट्स पे उसको लगा दिया जाता है। उसकी थर्मल उसमें हीट जनरेट तो नहीं हो रही है, वो करंट तो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी सीट के नीचे ही बैटरी होती है। तो बच्चे की सेफ्टी के लिए हम लोग उसको मिमिक करते हैं लैबोरेटरी कंडीशंस में, और टेस्टिंग के बाद ये इंश्योर हो पाता है कि प्रोडक्ट बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं। जी आइए। ये जो स्पेशल है हमारे, उसका ऑन ऑफ करके ये चीजें टेस्ट की जा रही है। ऑटोमेटिक टेस्ट फीचर इंडोरेंस टेस्ट, और ये अलग अलग टाइप के फीचर जो रहते हैं। ये टम्बलर फीचर हैं, वो टम्बलर फीचर हैं, ये ऊपर टाइप फीचर हैं। इसके ऑपरेशन के लिए अलग अलग मैकेनिज्म है। तो इसको 40,000 टाइम्स ऑपरेट करवाते हैं नॉर्मल ऑपरेशन में, और उसके बाद इसका चेक करना रहता है कि टर्मिनल्स ये सब खराब ना हो, और बाकी इसका कनेक्शन जैसे वेल्ड हो जाता है, अगर हाई करंट कंटिन्यूअस फ्लो करते रहती है तो उसे वेल्ड ज्वाइंट हो जाते हैं तो फेलियर कंसीडर होता है। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कोई भी नॉर्मल इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से और नॉर्मल सेटअप इसके हैं हमारे पास नॉर्मल ऑपरेशन के, और इसमें 3 तरह के लोडिंग पर टेस्ट किया जाता है। एक इंडक्टिव लोडिंग, एक एसबीए लोडिंग, और एक होता है एक लोडिंग के लिए फ्लोरोसेंट लाइन लोडिंग। ये सारे नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ही हैं, और इसमें मेकिंग ब्रेकिंग का भी टेस्ट करते हैं। ये ब्रेकिंग ब्रेकिंग है सर, इसमें प्लग के बोर्ड एंकेज का चेक किया जाता है। इसमें 5000 फ्लैशिंग करते हैं, ये बेंड करता है, इसके बाद चेक किया जाता है बोर्ड एंकेज खराब ना हो। इम्पैक्ट स्टैंडर्ड में डिफाइन करते हैं हाइट और वेट, उससे इम्पैक्ट मार करके देखते हैं कोई विजुअल क्रैक नहीं आना चाहिए। और इसका सॉकेट का है, नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं, प्लग लग आउट करके इधर इसका अरेंजमेंट इधर लोडिंग का अरेंजमेंट रहते हैं। ये जो रिक्वायर्ड करंट रहता है जितना सर्किट ब्रेकर नहीं, स्विचेज हैं, टम्बलर टाइप स्विचेज। ये रॉकर टाइप स्विचेज हैं, टम्बलर टाइप स्विचेज है। इसको ऑन ऑफ करके चेक करते हैं, और इसमें जितना करंट रेटिंग करता है उतना करंट फ्लो करवाते हैं। तो लोड से है, लोड के थ्रू करंट देते हैं। पियानो स्विच भी बोल सकते हैं पुराने जमाने की, और पियानो नहीं है, उसको अलग रहता है सर। अच्छा, ये करीब 7 to 8 टाइप के स्विचेज आते हैं। लग आउट करके 5 रेटिंग के हिसाब से होता है, ऑन ऑफ
किया जाता है, उसके बाद बोलते हैं कि ये सब खराब ये टम्बलिंग बैरल का जो है प्रॉपर नहीं वो चेक करने के लिए टम्बलिंग बैरल टम्बलिंग टाइम रोटेट करने से इसके अंदर जो ये ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक होने के बाद चेक किया जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग, अगर ये वेट आ जाता है हमें क्रैक आता है वो चेक करते हैं गेज के, अगर प्रॉपर फिट हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं फिट हो रहा तो फिर क्लोज कर देंगे। ये सर हमारा टेम्परेचराइज्ड सेटअप, जो स्विचेस लगाते हैं सॉकेट करते हैं उसमें जितना रेटिंग का रहता है, तो ये होगा कि अपने कितना पैट देना है उस रेटिंग के हिसाब से पैट को 1 आवर 1 आवर बाद चेक करते हैं कि कितना उसका टेम्परेचर आ जा रहा है। यहाँ पर तो 46.6 आया है, इसमें 23 आ रहा है, इस तरह से इसका टेम्परेचर आ हाँ